Thank you so much for that amazing beginning. So, hi everyone, welcome. Sorry. Funny, guys. Oh, Mm. okay. Phone in oblivion. That happened. ऐसा हो गया. Oh God. तुम शुरू करो whenever you are ready. And ऐसा amazing वगैरह नहीं, थोड़ा सा casual रखो. हाँ. Okay, ठीक है. So before you move towards part B and C, so in part B there is a story of a boy named Arvind. Yeah. Okay, and the story is set in the 1970s. Mhm. So what is the real reason why you chose to take a story that is from 1970s rather than taking a story that is probably from this century or probably that is from our generation? So that is one question that I have about part B. About part C. So this is something very interesting that I actually observed while I was reading this chapter. So in part C also I could see three different parts, three different mindsets or three different thoughts that you actually try to portray. The first being the meaning of roots, essentially what roots is, and then how the DNA determines the genes and all those DNA related things about a human being being actually evolved from being one, what do you call, one set of Single cell organisms. yeah, in one cell, and then how every human being is actually from one specific community. So that is one part that you explained. Second part that you explained was with regards to the communal differences that is very much prevalent in our society, and why it should not be uh, there should not be such communal differences because of the mere fact that we are one set of people belonging to the same community because of the DNA that you explained. So that's the second part that I observed. And the third was something that you linked all these concepts, all these theories to a political satire. So you explained it in a political scenario, how the politicians of this era, how they behave and how the society has become and all of that. So in the part C also I could see three different parts. So if you would explain why, or was it unintentional, or did you actually think about taking these three different concepts and merging it in one part? So if you could explain that, it would be very informative. Right. So let us talk about part B first. So as I said, there is a very strong reason why my story is revolving around Nasik, because if I'm trying to elaborate on the philosophy of the roots that have been oblivionated, it was very easy for me to explain from my point of view using the references that I have gone through individually, right? And for me, or the experiences that I have gone through, right? So a major chunk of my experiences are from my childhood, because that I think till the time we turn 15, 16 or 17, more or less our attitude towards life is very inquisitive and very carefree. Later on, we start getting a hang of our responsibilities. Then maybe we do not look at the world from a very unbiased perspective. But till that point, we truly are very unbiased and we are very open to all the experiences. And we have that ability to absorb every good and bad thing
from our environment or from the world in general. Um, that being said, the reason for the book being set in the 1970s is because as a person, I have always fascinated of the era, especially between or just before independence, like from the 1940s or 1935 onwards until 1975 or 80. Because I feel post 1980, globalization had already started on quite a scale. Though technically, in India, the liberalization, privatization, and globalization happened in 1991, and after that, Indian economy opened, and then we were like going towards that whitewashing of our previous culture and cultural context with just the Americanized or the developed nation context that were being bombarded on us. But anyways, so I think the 70s was a very wonderful era in that context because the people who were born in the 1930s or 40s, they were just born when independence had happened. So when these people were in the Right. 1970s, they were technically in their 30s. Or for the children who were being born in, say, the 1970s or 65s, they were technically born in the post-independence era. But yet, India was not a very, economically well-off country. There were Right. massive wars that were going on, be it China, Pakistan, or internal rifts were also there. But in spite of all these facts, what fascinates me truly is the fact that there was a lot of simplicity in how people carried out their lives. And I Right. know this because I have discussed these things a lot with my grandmom, because my grandmom was born in 1927. So she was in her 50s in the 1970s. So I've talked, I mean, I've conversed a lot with her. I've conversed a lot with people of like our mom, dad's generation, and so on and so forth. So all these people, what they told me was the crux was basically this, that people had less money. Um, the children had a lot of siblings. So you wouldn't have just one or two siblings. You would be having at least 4 to 5 or 6 to 7 siblings, or probably more. Right. It was very difficult. Generally, the trend was that the women of the house, they would be housewives, more or less. Again, 70 to 80%, I'm saying. The men of the house, they might not be extremely highly educated. They could be clerks or school teachers, or they would be doing basic salaried jobs. So basically, for the first days of the month, the financial condition was okay. But post that, it would be really difficult sometimes to even think about how to produce the ration. And in spite of that, the lady of the house would not be overtly angry. She wouldn't be in depression, so to speak. The children in the house, more or less, they would be bought cloth pieces at length, and there was a single cloth piece, and then that would be cut into different measurements, and the girls would be given a skirt of the same cloth piece, and the guys would be given a pant or a shirt of the same cloth piece. It was that simple. But the most important thing, in spite of, there was absolutely, I mean, forget internet, there were no landline phones. There were trunk calls, and there was, I don't know the English terminology, I'm sorry, but in Marathi we call it the Tare Yantra. I think it is the telegram. Yeah, it's the telegram. Telegram. Yeah. Yeah. So it had that, it was like the Morse code, kadakatta, kadakatta, kadakatta. And then the post office would Right. transfer that code, and normally the telegram would be used only as an emergency service, which means if somebody had died in some other city or a town, you would be getting a telegram. So when the postman would say that, okay, Joshi, you have got a telegram, everyone's BP would go racing. So it was that era. Might not be communicating with each other often, but they were much more connected. Their interactions were a lot, and most importantly, like I said, the simplicity. So majority of मेरा बचपन गुजरा है वाड़ा टाइप के structures में in Nasik. And what I would observe there was, there would be gullies, like alleys that we call it in English. And so
my mom's side, like my maternal side, had a big vada. Like my grandfather or his father, whatever, he had a big vada. So there would be at least 30 to 40 people residing in that vada at one point, residing like as a residence. And apart from that, कोई स्टूडेंट है, किसी का दोस्त है, किसी के रिलेटिव्स है, किसी के रिलेटिव्स के दोस्त है, दूर का रिश्तेदार है, ऐसा करके अगर वाड़ा में 30 लोग रह रहे तो खाने के लिए स्पेशली फॉर डिनर कम से कम 40 to 50 लोग होते थे. So like जितने लोग रह रहे उससे 10 to 20% और 30% मोर पीपल वुड बी देयर फॉर डिनर. रैंडमली कोई आ जाता था. बट एक इतना होलिस्टिक और एक इतना ब्यूटीफुल सोशल गैदरिंग जैसा माहौल होता था. Nobody would question anyone, and the proportion of the ration or the proportion of cooking that would also happen in a very freewheeling manner. After dinner, people would just hang out on the katta, and कोई like पान खा रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई चाय पी रहा है, and then 10, 10:30, 11 बजे जो भी बाहर वाले लोग थे वो बाहर चले गए, जो वाड़ा वाले लोग थे वो सो गए. तो ये जो माहौल था ना, वो माहौल मैंने इतना नहीं देखा है, but still I've heard about it a lot and I've somewhat seen like उसका trickling down effect मैंने थोड़ा सा देखा था. And वो जो माहौल है, वो माहौल in today's time, in today's apartment संस्कृति, I really miss in the apartment culture that we call it. And in spite of the fact that like हर एक घर में अभी वाईफाई है, लैपटॉप है, मोबाइल एटलीस्ट एक रहता है हर किसी के पास. So just today I have a very, like I was thinking about this before we were shooting the podcast. I have some very good friends in this society. और हम लोग बचपन में लाइक ये जो बंदा है अरविंद, उसकी तरह हम सब लोग शाम को इकट्ठा होके हम 3-4 घंटा क्रिकेट नहीं तो कुछ ना कुछ खेलते रहते थे. एंड हम एक दूसरे के घर जाते, एक दूसरे के घर का खाना खाते, लाइक जैसा वो हमारा ही घर है. ऐसा हमने बहुत साल किया. उस जमाने में ना हमारे पास इंटरनेट था, मोबाइल था, कुछ था, बट हमारा एक टाइम होता था, उस टाइम पे हम इकट्ठा होते थे, एक टाइम पे हम डिस्पर्स हो जाते थे. आज मेरे सारे दोस्त मेरे व्हाट्सएप पे है, गॉड नोज मेरे कितने व्हाट्सएप के ग्रुप है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स हम एक दूसरे के घर जाने के लिए और बिल्डिंग के नीचे कट्टे पे मिलने के लिए हमको 5 बार डिसाइड करना पड़ता है, एंड स्टिल द प्लान फेल्स. सो देयर हैज बीन दैट सेंस ऑफ डिटैचमेंट, एंड वो जो डिटैचमेंट है वो मुझे पर्सनली बहुत खाता है. And roots in oblivion even in this sense कि interpersonal interactions जो थे, the simplicity of life, or just the manner in which people would spend time qualitatively with each other, and most importantly 1970s, because of course उस जमाने में भी human beings ही थे, so negative traits उस वाले human beings में भी थी, but maybe because of lack of choice or because of the knowledge कि अगर हम लोग साथ रहेंगे एक दूसरे से connected, so there is a sense of brotherhood. So maybe the negative emotions like जलन होना, you know, or all those kind of things, या गुस्सा होना, गुस्सा आता था तो तुरंत एक दूसरे के मुंह पे बोल देते थे, सॉरी बोल देते थे, गले लगते थे, खत्म हो जाता था. दूसरे दिन वापस एक दूसरे के घर में जाओ, हमारे घर में दूध खत्म हो गया, आप अपना दूध दो, पेपर नहीं आया, आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर आता है, हमारे बच्चे की इंग्लिश के एग्जाम है, आप आपका पेपर दो. यू नो ये जो चीजें है ना छोटी छोटी, वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस तो किया, लेकिन वाड़ा संस्कृति में ये चीजें बहुत होती है. एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल पोएट्री टू इट. लाइक आगे जाके अरविंद एक चैप्टर में अरविंद जब क्रिकेट खेलता है तो किसी की कांच तोड़ देता है. तो जब वो कांच तोड़ देता है तो वो आंटी उस पे हक से गुस्सा करती है, और वो आंटी इतना गुस्सा करती है, अरविंद घबरा जाता है कि ये आंटी कहीं मुझे लाइक शी वोंट गिव मी अ बीटिंग. बट द ब्यूटी इन दिस सिंप्लिसिटी इज दैट वो आंटी को कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने बेटे जैसा अरविंद को 1-2 रपटा लगा सकती हूँ. अरविंद को कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये मेरी मम्मी जैसी है, इन्होंने मारा तो मुझे सुनना पड़ेगा, और अरविंद की मम्मी को भी प्रॉब्लम नहीं है. ये आजकल आप कहीं नहीं देखोगे. इमेजिन करो एक अपार्टमेंट में बच्चे नीचे खेल रहे, किसी ने कुछ किया और एक रैंडम मतलब दूसरी आंटी ने मेरे बच्चे को मारा, तो पहला क्या होगा, मैं उनके घर पे जाके झगड़ा करूंगा, दूसरा पुलिस केस होगी, गैंग वॉर हो जाएगा. हाँ, लाइक इफ नॉट गैंग वॉर देन तुम्हें पता है मेरा कौन है, ये कॉर्पोरेटर मेरा दोस्त है, अरे ये ये सब शुरू हो जाता है. और उस जमाने में ये कुछ नहीं था, एंड फिर भी लोगों का बीपी कंट्रोल में था विदाउट टेकिंग बीपी का मेडिकेशन.
there were no health insurances. In spite of ये छोटे छोटे झगड़े होके भी people were living longer. So there is something in that era which we are not absorbing and which we are not enjoying, which we are missing, and hence that era. True. Hence that era. Also I think in that era the people were more rooted to their traditions, and they valued their morals more than we do currently. Absolutely. That is also something that have kept them the way they were, and by the reason that they lasted so long. Absolutely. So and one that's more thing, an excellent choice. Yes. And one more thing about Arvind, I forgot in the flow of talking. So, you know, in those zamana, like Arvind is that guy. मतलब Arvind का आज का age देखोगे, तो he is kind of the same age of my papa. So there are certain traits of that mischievousness and less of study and more of खेलकूद and more of outdoor activity and all those things. मेरे पापा थे एक्चुअली उस टाइम पे ऐसे, लाइक अगर 6 महीने में एक बार सिर पे नहीं गिरे या नाक पे नहीं गिरे या खून नहीं बहा बदन से, छोड़ो फ्रॉम हिज फेस, देन मेरे घर वाले डर जाते थे कि सतीश को, मेरे पापा को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. लाइक इट वाज दैट. एंड अरविंद इज एसेंशियली दैट गाय. सो द ब्यूटी एंड like the paradox or the poetry in Arvind's story is that for all the readers जिनको context पता नहीं है story का, थोड़ा सा background दे देता हूँ. अरविंद जिस वाड़े में रहता है, वो जो alley है, उस alley से maximum आधा या 1 किलोमीटर दूर पे there is this area which is called as पंचवटी, एंड वहां पे सीता गुम्फा करके जगह है जहां पे सीता मैया राम लक्ष्मण सब रहा करते थे, ऐसा बोला जाता है. Nobody knows if it's true or false, but it has been propagated as a truth for thousands of years. So लोग उसको मानते हैं genuinely, and it has a very significant religious, spiritual, and philosophical importance. The beauty in this story is that Arvind is like 7, 8, 10 years old, जो भी है, and in spite of that fact, Arvind 1 किलोमीटर दूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई धार्मिक स्थल है या टूरिज्म का कोई प्लेस है, और अरविंद वहां पे कभी गया ही नहीं है. और अरविंद के माँ बाप को पता है कि अरविंद इज टू मिस्टीरियस, सो उसको अकेले को जाने नहीं देते. एंड मे बी उसकी मम्मी जो हाउसवाइफ है, उनको बेचारी को पूरा दिन काम करना पड़ता है. पापा कोई ऑफिस में काम करते तो वो थक के आ जाते हैं. संडे उनको मिलता है तो संडे ही wants to rest, you know. And because of all these things, and because Arvind is small in age, Arvind वहां पे कभी गया ही नहीं है. एंड जब कोई बच्चे को बोलोगे आपके वहां पे मत जाओ, तो बच्चा जाने की ज्यादा कोशिश उधर ही जाना रहता है. ऑब्वियसली हम सब ने वही देख, हमको जो पढ़ने को नहीं बोला था वो किताबें हम पहले वही पढ़ेंगे हम. करेक्ट. या सो अरविंद की एंटायर स्टोरी जो है, अरविंद कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे वहां पे जाऊं. पहले मॉम डैड को फोर्स करता है, मॉम डैड उसको कचरे में निकाल देते कि तू नहीं जाएगा वहां पे और हम तुमको अभी वहां पे नहीं लेके जा सकते. एंड अरविंद को कुछ, ऑल्दो अरविंद बाय बर्थ इज अ हिंदू, बट अरविंद इज सो स्मॉल, अरविंद को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अबाउट हिज रिलीजन. अरविंद को रिलीजन समझ में भी नहीं आता है. ऑल अरविंद केयर्स अबाउट इज देयर इज समथिंग एक्साइटिंग नियर टू द प्लेस वेयर आई स्टे, और मुझे वहां पे जाने को नहीं मिल रहा है. So he tries to develop plans, और उसके plans कैसे fail होते हैं, उसके interpersonal relations with people around, with his gang of guys, with his mom, dad, and how like those are stupid plans that he makes, but for him in his mind those are devious plans. So that, yeah, of course. Yeah. So that is the reason 70s era and a boy of Arvind's age, like 8 to 10 to 12 years, was very important for me. Because like मैं imagine कर सकता हूँ, अगर मैं उस टाइम पे रहता तो मैं मे बी अरविंद नहीं होता, पर मैं उसके फॉलोअर फ्रेंड्स में से एक होता. बिकॉज नेचुरली इन माई हार्ट मैं थोड़ा ज्यादा फट्टू हूँ, तो मे बी मुझ में उतना मुझ में हिम्मत नहीं था, मुझमें उतना हिम्मत अभी भी नहीं है, एंड उतना मैं तोफ नहीं हूँ like अभी भी. But I have known of people, I have seen people who were like him, and वो बहुत interesting facet लगा मुझे कि indirectly Arvind, because of his inquisitiveness, is also going to connect with his roots.
एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज कि वो 1 किलोमीटर दूर है, पर जाने के लिए उसको एक किताब का पूरा जर्नी ट्रैवल करके जाना पड़ता है, एंड देन मे बी वो जाएगा नहीं जाएगा वो बाद में हम जान लेते हैं. And yes, about the part C that you mentioned, so मैंने ना पार्ट सी लिखूंगा ये कभी सोचा नहीं था इनिशियली. Like when I did the structure of the book, what I did was मैंने 9 chapters के नाम लिखे सारे, मतलब टाइटल के नाम. देन चैप्टर 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, उसके उसके अंदर क्या होगा मैंने वो पॉइंट आउट किया. और मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, द पार्ट सी विल ऑलवेज बी माय इंटरप्रिटेशंस अबाउट द फिलोसफी एंड समथिंग लाइक दैट. बट मुझे पार्ट सी का सबसे ज्यादा डर था, बिकॉज इन ऑर्डर टू डेवलप अ सर्टेन फिलोसफी, एक तो आपका आपका खुद का, द राइटर का खुद का मेंटल स्टेट बहुत ही शांत होना चाहिए. सेकंड, you need to be honest with your conviction. Third, you need to elaborate properly what you want to say. And the fourth and most important is you normally don't write a book in less than 1 or 2 months, I would say. So आपको टेक्निकली याद नहीं होता है जब आपने किताब शुरू की है लिखना. So what I'm trying to say is जब मैंने part C of the first chapter लिखा, say it was on the 1st of January. So by the time I wrote the part C of the 9th chapter, I was somewhere in the February end or March starting. तो मुझे लिटरली याद नहीं था कि मैंने लिखा क्या था शुरुआत की फिलोसफी में. एंड द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी वाज कि मुझे उस टाइम पे कुछ ना कुछ फिलोसफी तो सोचती, एंड आई वुड बी प्रीटी ऑनेस्ट विथ माय थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम. एंड आई वुड like I knew कि I have this ability of exploring and detailing that philosophy. But the real जो डर था मुझे वो ये था कि ये लास्ट वाली फिलोसफी और पहली वाली अगर कॉन्ट्राडिक्ट होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने जो सारा लिखा है. मैंने मेरी उस टाइप की उस टाइम की मेंटल स्टेट को रख के और जो मुझे लग रहा है वो चैप्टर में क्या है उसके बारे में लिखा है. और बार बार मैं अगर पहले वाला पढ़ूंगा तो मेरा नेचुरल फ्लो जो है वो चला जाएगा. तो मैं वो पढ़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पढ़ा तो उसके बारे में ही बार बार लिखूंगा. देन इट विल बी हम जो स्कूल में करते थे कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क का इलैबोरेट कर करके लिखो, तो मुझे वो भी नहीं करना. तो फिर मैंने डिसाइड ऐसा किया कि मैं ब्रेक लेने लगा आफ्टर एवरी चैप्टर. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर में 2 या 3 दिन का ब्रेक लेता था, और मैं सोचता ही नहीं था. मैं कुछ टीवी शोज में कुछ रैंडम देखता था. देन अबाउट दिस स्पेसिफिक पार्ट सी, इसमें मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या लिखना है. मैंने बस इतना किया कि पार्ट ए और पार्ट बी मैंने पूरा पढ़ा अच्छे से. वो मुझे पढ़ना पड़ा क्योंकि उस पे बेस्ड मुझे लिखना था ना, तो उसका बैकग्राउंड मुझे अच्छे से रिवाइज करना था. तो वो मैंने पूरा पढ़ा. एंड आफ्टर दैट मेरे दिमाग में 3 या 4 चीजें थी, जैसे तुमने बोला वो उस फ्लो में आई. वो जब आया वो नेचुरली आया, लेकिन मुझे 2 से 3 चीजें थी. एक तो दैट पार्ट सी kind of encompasses the philosophy of the entire book because it is about the concept of roots, और किताब का नाम Oblivion ही है. So the real challenge for me was मैं उस पे 100 पन्ने भी लिख सकता था, बट देन किताब का पॉइंट क्या है, फिर चैप्टर्स का पॉइंट क्या है. तो मुझे उसको शॉर्ट लिखना था so that I wanted to save content for the later chapters. तो मैंने बस इतना डिसाइड किया था कि मुझे 5 या 6 पन्नों से ज्यादा लिखना नहीं है, और मुझे मेनली 3 चीजों पे फोकस करना है. वन थिंग वाज दैट इंट्रिंसिकली मुझे खुद को रूट्स का मतलब क्या आता है. और जैसा मैंने पहले बोला था कि मैंने वो कार्ल सेगन की वो जो डॉक्यूमेंट्री है वो देखी है, और उस पे इंस्पायर्ड ये बुक है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ देयर वाज नथिंग, बिग बैंग हुआ, फिर सब गैलेक्सीज प्लैनेट्स फॉर्म हुए, फिर अमीबा से सब लिविंग बीइंग्स तैयार हुए, करके 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 ह्यूमन बीइंग्स आ गए, एंड देन वी हैव इवॉल्व्ड अंटिल नाउ. तो ये थॉट मेरे दिमाग में बहुत था. ये दिमाग मेरे दिमाग में इतना क्यों है, बिकॉज व्हेनेवर इन माय लाइफ
I feel a little sad or depressed, to gain some perspective and to tell myself कि नहीं, nothing matters beyond the point, मैं ये philosophy की तरफ जाता हूँ. Because when you think about yourself as truly insignificant, then तुमको तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है उससे नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आज मैंने एक टास्क लिस्ट खुद के लिए की है, या सपोज मैंने जॉब इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में मैं फेल हो गया, या मैंने एग्जाम दी और एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, या मुझे लाइक जो भी है मैं फेल हो गया सब्जेक्ट में, मेरा ईयर डाउन हो गया, तो लोग बहुत ज्यादा मन पे लेते हैं. तो मैंने जब ये डॉक्यूमेंट्री पढ़ी, लाइक देखी ना, और उसके बारे में जब किताब पढ़ी, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि लाइक ठीक है यार, तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है या बहुत बुरा भी हो रहा है. इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स practically nothing matters. So then what matters is that you just be grounded no matter अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, and तुम बस अपना काम करते रहो, and you just stick to your roots, you just stick to the simplicity. तो इस चैप्टर में रूट्स का मतलब असल में सिंप्लिसिटी है, बिकॉज हमारे हाथ में नहीं होती है चीजें, ये हमको समझते समझते बुढ़ापा आ जाता है इंसान को. और ये जब इंसान लाइक 60 प्लस 65 70 प्लस हो जाता है, उसके बाद इंसान को रियलाइज होता है कि ओ माय गुडनेस, मैंने तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था. हाँ सही है, तुम थे, लेकिन आज तुमको कोई नहीं पूछता है, और आज तुम वही कहानियां बार बार रट्टा मार रहे हो टू द यंगर जनरेशन, और वो यंगर जनरेशन को बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो. बिकॉज दैट यंगर जनरेशन का जो पर्सन आपके सामने है, ही माइट बी इनटू अ रॉक बैंड, और आप एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए हो एक बहुत बड़े एमएनसी के, और आप आपकी एक एकदम सीरियस डेमिनोर में उसके बोल रहे हो कि बच्चे देखो लाइफ में ऐसे होता है, सीरियसनेस होना चाहिए, और वो बोल रहा है कि ठीक है बट आपका जमाना गया, आई डोंट केयर व्हाट यू डिड इन योर लाइफ. And this is the reality, like whatever we do, we think because we are the center of our universe ना, हम सबको अपनी लाइफ का हीरो बनना है, और हम सबको जीतना है. हम सब अपनी लाइफ के हीरो बन चुके हैं, और हमारी मेंटालिटी में या हमारी थिंकिंग में हमको बस ये करना है तो हम जीत जाएंगे. तो वो जीतने के बाद वी फील दैट वी आर एंटाइटल्ड टू गिव ज्ञान टू द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज हमारा पर्सपेक्टिव अकेला ही सही पर्सपेक्टिव है. Right. Actually, what you think or what you say doesn't really matter to anyone, maybe except आपके घर वाले, आपकी बीवी. आई एम वेरी श्योर आपके बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा आप क्या सोचते हो, बिकॉज वी ऑल हैव बीन किड्स, एंड हमने कितना सुना अपने माँ बाप का हम सबको पता है. सो हमारे बच्चे भी हमको यही करेंगे, ये हमको भी पता है, लाइक फॉर ईच वन ऑफ अस. एंड ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि वी डोंट रियली मैटर, हमारा ईगो हमको ये बताता रहता है, दैट ईगो हमको एक फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देता रहता है मरते दम तक. बट इंस्टेड ऑफ फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप, इंस्टेड इफ वी गो बैक टू आवर रूट्स एंड जस्ट से कि आई एम डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, देन उसका बाय प्रोडक्ट है, और मैं गाना गा रहा हूँ और किसी को आनंद मिला तो वो बात अलग है. मैंने किताब लिखी बिकॉज मुझे लिखना था, मुझे बोल के रखना था इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट. उससे किसको क्या लेना है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. सो दिस एंटायर बुक का एक्सरसाइज या दिस एंटायर पॉडकास्ट का एक्सरसाइज इज नॉट इवन रिमोटली रिलेटेड टू मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि आप ये करो आप ये मत करो. इट इज जस्ट अबाउट लाइक संत रामदास सेड, वो खुद के मन को बोलते हैं कि मना मतलब है मन, तू ये कर तू ये मत कर, ये करना तुम्हारे लिए सही है ये करना तुम्हारे लिए गलत है, ये खुद के मन को बोलते हैं. वैसा ये स्टोरी मैंने अपने लिए लिखी है, ये फिलोसॉफी भी मैंने अपने लिए लिखी है. लोगों को उसमें से पढ़ के उसको अच्छा बोलना है बुरा बोलना है, उसमें से कुछ लेके जाना है उसमें से कुछ लेके नहीं जाना है, उसको घटिया बोलना है या उसको ऐसा बोलना है कि ये कितना इंस्पिरेशनल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से. एंड मतलब थोड़ा सा पढ़ता है, बट देन अगर मैं ये खुद को बोलता रहूं बार बार कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो मे बी I will attain that level of bliss. It's easier said than done. Easier said than done. But correct.
दिस बुक इज ऑल्सो अ मेंटल एक्सरसाइज फॉर माई ओन सेल्फ। उसमें से कुछ एंटरटेनमेंट कोशेंट लोगों को मिला तो ग्रेट, दैट इज द एंटायर पर्पस, और इट इज एन एंटायर पर्पस ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बुक। कमिंग बैक टू पार्ट सी में ये एक हो गया। सेकंड पार्ट जो तुमने बोला वो था पॉलिटिकल एंगल। द मोर I have traveled the world, the more I have come in contact with different people, the more I have interacted with people, the more different cuisines of food I have had in my life. मेरे previous सारे notions break हो गए, because for a guy who has been brought up in Pune since I was a few days, so I'm technically a Punekar, that too I'm a Maharashtrian person. सो हमारे लिए ना एक वर्ड कहा जाता है मराठी में, सदाशिव पेठी, जो बाकी मराठी में गाली जैसा यूज होता है, विच लिटरली मीन्स अ पर्सन हु इज snobbish or who is too into himself or herself. अकड़ू अकड़ू बोलते हैं ना हिंदी में हम, थोड़ा सा वैसा है। और मैं वैसा था जिंदगी के बहुत सारे पहले साल। आई वुड ऑलवेज से कि मुझे हिंदी ज्यादा जान के लेने की जरूरत नहीं है, मेरी इंग्लिश काफी हद तक अच्छी है। आई वुड ऑफ कोर्स आई एम प्राउड ऑफ माय मराठी, आई विल नॉट बी हम्बल अबाउट इट, बट मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं पुणे में हूं तो मैं मराठी ही बोलूंगा, बाकी लोगों को आना है तो मराठी सीखो। ये पॉम्पस एटीट्यूड मेरा था और बहुत सारे लोगों का रहता है, जो बहुत ही घटिया चीज है एडमिटेडली। और ये कब ब्रेक होगा ना, ये तभी ब्रेक होगा जब आपको एक ग्लोबल आउटलुक मिलता है दुनिया का, एंड देन यू रियलाइज कि आप सब लोग एक ही बेसिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने हो, जस्ट दैट यू वर बॉर्न इनटू डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। तो आपका लैंग्वेज, भाषा, आपका दिखना, आपकी सारी चीजें अलग है बेसिकली, एंड दैट शुडंट रियली मैटर, बिकॉज अगर आप एवरी डे सुबह शाम दाल चावल खाओगे तो एक तो घर वालों से झगड़ा करोगे, नहीं तो घर से भाग जाओगे, मतलब बेसिकली आप बोर हो जाओगे। सो वैरायटी चाहिए ना लाइफ में, वैरायटी है तभी तो लाइफ में मजा है, और ये भी तो वैरायटी है, और क्या डिफरेंट है। सो ये एटीट्यूड मुझे जब इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, लेकिन जब मुझ में हुआ धीरे धीरे ये एटीट्यूड इनकॉर्पोरेट, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी हो अक्रॉस इंडिया और इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, द वन थिंग दैट दे रियली थ्राइव अपॉन इज डिवाइड एंड रूल। जो ब्रिटिश लोग इंडिया में करके गए और रादर दुनिया में करके गए, वही दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बी देम रीजनल और नेशनल, वो आज भी करती रही है। उनको उससे पैसा मिलता है, पावर मिलती है, प्रेस्टीज मिलती है, और जो कॉमन मैन होता है उसको कुछ नहीं मिलता है, बस उसके दिमाग में हेट्रेड का एक सीड प्लांट हुआ रहता है। So instead of that, if we like every individual goes back to their own respective roots, हम अपनी खुद की मातृभाषा अच्छे से सीखे, हमारे खुद के क्यूजिन्स अच्छे से रेलिश करना सीखे, कुक करना सीखे, हमारी लैंग्वेज सीखे, हमारे आचार विचार सीखे, हमारे कल्चरल जो भी आइडेंटिफिकेशंस है उनको जान ले, एंड देन साइमल्टेनियसली across the strata, across the region, across languages, across cultural notions break करके अलग अलग दोस्त बनाए, अलग अलग लोगों से अपना रिश्ता बनाए, तो हमको एक्चुअली रियलाइज होता है कि इट इज एंडलेस एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड यू नो वो एक कहावत है, लाइक पिंडातून ब्रह्मांड, और मतलब आप खुद से शुरू करो, और इनसाइड आउट जो एटीट्यूड बोलते हैं ना उसको, द इनसाइड आउट देखना, मतलब पहले खुद के अंदर झांको और खुद की आइडेंटिटी देखो, पारखो, और जब आप वो करोगे यू विल रियलाइज दैट वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट, बट स्टिल यू विल बी मोर एक्सेप्टिंग, और वो हार्मनी का फीलिंग आ जाता है। होता क्या है, स्पेशली पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, व्हाट हैपेंड वाज इकोनॉमिक द्वार खुल गए देश के, और सारी बाहर की कंपनियां आ गई, तो हमारे लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ गया। और अगर अंग्रेजी इंडियन एक्सेंट में बोल रहे हो तो आप घटिया, अगर अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहे हो तो भारी, अगर ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे हो तो आप रॉयल, और अगर इटालियन एक्सेंट में बोल रहे हो तो आपका मजाक उड़ाया जाता है।
And this same Right. typecast attitude was perpetuated through our Bollywood movies, through even the regional movies to a certain extent. ये stereotypes है, और ये stereotypes तभी break होंगे जब आप अपने अंदर देखो, make your own cultural identity stronger, and then have a cultural exchange with all other people around you who do not have that same cultural identity, because it is only then that intermingling will happen. फॉर एग्जाम्पल इन स्टेट लाइक महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा जो घटिया चीज आज पॉलिटिक्स में हो रही है वो है कास्ट पे बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स. लाइक कास्ट, एक पर्टिकुलर कास्ट का कोई बंदा खड़ा हो जाता है एज अ पॉलिटिशियन और एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, एंड देन उसी कास्ट के सारे जो कॉमन मैन लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ये अपने कास्ट का है तो इसको ही देना चाहिए अपना वोट. फिर वो बंदा, उसकी पार्टी और एक पार्टी अलायंस फॉर्म करती है बिफोर गवर्नमेंट, बिफोर द इलेक्शंस, और देन उनके अपोजिशन होते हैं, उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, तो उनके फॉलोअर्स अलग होते हैं. और जब एक्चुअली वोटिंग होता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, सो पार्टी A+B वाज अ यूनियन, पार्टी C and D वाज अ यूनियन, कंप्लीटली कास्ट पे हुआ पूरा इलेक्शन, जो सबसे घटिया चीज है. और जब एक्चुअली इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, A-B-C-D स्प्लिट हो गए, A और C साथ में आ गए, B और D साथ में आ गए. मतलब बनाया किसको गया? कॉमन मैन को. पॉलिटिशियंस मेड श्योर कि उनका एक पैसा भी कम नहीं हो रहा है. उनको जो भी घटिया पॉलिटिक्स खेलना था, जो भी करप्शन हुआ रहेगा, नहीं हुआ रहेगा मुझे पता नहीं, पर जो भी हुआ रहेगा सब गंदी घटिया चीजें वो होती रही. इसमें कॉमन मैन क्या हुआ? कॉमन मैन का, एक तो कॉमन मैन का आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, और सबसे जरूरी बात, कॉमन मैन में कास्ट A-B-C-D, ये जो 4 कास्ट के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं आए, वो और दूर चले गए. ये सिर्फ महाराष्ट्र में है. जो सारे मराठी स्पीकिंग लोग हैं, मैं सिर्फ उसके बारे में बोल रहा हूँ. इमेजिन करो ये पूरे इंडिया में मोर और लेस होता आ रहा है, और ये अभी ज्यादा हो रहा है. और हम सब लोग एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड के तौर पे क्या करते हैं, तो हम सिंपली अपना सारा कल्चर इग्नोर करते हैं, इंडियन कल्चर, और हम डायरेक्टली बोलते हैं कि अमेरिका भारी, इंग्लैंड भारी, जर्मनी भारी, हम एकदम घटिया. तो देर एक कोई बीच का गोल्डन मीन नहीं है क्या ये चीजों में? उसमें है ना. उसमें पहली स्टेप अकॉर्डिंग टू मी है, खुद की कल्चरल आइडेंटिटी क्या है उसको परखो, और दूसरी है इंटरमिंगलिंग करो, तो ही यूनिटी आ जाएगी. और इसलिए मैंने इतना स्ट्रांगली बोला है. फिर भी बुक की वर्ड के लिमिटेशंस थे, और मुझे बहुत ज्यादा उन चीजों में घुसना नहीं था करके मैंने वो पैराग्राफ्स बहुत ही लिमिटेड रखे. बट हाँ, दिस इज वन एस्पेक्ट जिसके बारे में मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है. और हाँ, बाय द वे, हम हिंदी में बोल सकते हैं हाँ बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं है. हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है. Oh God. चलो बढ़िया, चलो डन.